Well, I'm actually very, very excited to be a part of this today. And I obviously support it from the bottom of my heart because being from the media industry myself, I do feel that if anyone gives a proper platform to talented individuals, I think it is a great service to the society. This is what I genuinely feel, and I think it's a great initiative. And this is basically, I think, taking Indian Idol to the level of Universal Idol. So I think it's a great initiative, and I wish all of you a lot of success. And is this your first season? Yes. Okay, lovely. So we really look forward to having several seasons, and I hope, apart from musicians, or apart from vocalists, Universal Idol at some point, also has enough competitions for other forms of art. Where you can, whether be it acting, dancing, where you can actually promote a lot of new talent. I think that would be really, really Yes, good. that's true. Yeah. Thank you. Done? मैम अब उनसे मैं आप कुछ नया प्रोजेक्ट बताना चाहेंगे कि क्या करना है या एक्चुअली नहीं, हमारे भी बहुत सारे, अभी तो हमारे वो चित्रांगदा शक नारी वो चल ही रहे हैं प्ले, और हम जनवरी 9 को और एक नया प्ले लॉन्च कर रहे हैं, नायिका भूमिका. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ 2026. एंड देन ऑफ कोर्स और भी है ऑन OTT विच आई विल टॉक अबाउट लेटर नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट ईयर क्या बिग बॉस कर सकते हैं आप अगर आपको ऑफर आएगा तो आप नहीं, ऑफर तो हर साल आते हैं, पर आई डोंट थिंक आई हैव द टाइम. थैंक यू थैंक यू, थैंक यू. Thank you. यस, हेलो एवरीबॉडी. तो मैं बचपन से ही म्यूजिक का बहुत बड़ा एक मेरी आत्मा जो है, जो सोल है, वो पूरा म्यूजिकल है. क्योंकि मैं बंगाली हूँ, तो बचपन में मैंने रविंद्र संगीत सीखा है. और ये जो प्लेटफॉर्म है यूनिवर्सल आइडल, आई थिंक इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म सारे देश विदेश में जो भी सिंगर्स हैं, जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, वो इस पे पार्टिसिपेट करेंगे. आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया to showcase talent from international and from all over India. Or I wish success to the entire team out here to bring this initiative and to reach out to all the audiences from national and international spheres. तो दो पंक्तियां मैं गाना चाहता हूँ. इनफैक्ट मैं अभी म्यूजिक क्लासेस से आ रहा हूँ. मैंने हाल फिलहाल 4 सालों से, पिछले 4 सालों से मैं सुरेश वाडकर जी के यहाँ से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ले रहा हूँ. करेक्ट. आई थिंक बहुत ही ये एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है इंडियन आइडल का, यूनिवर्सल आइडल. क्योंकि आई थिंक देश विदेश में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जिनको प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है. क्योंकि सब कुछ प्लेबैक सिंगिंग तो नहीं होता है, सब कुछ म्यूजिक वीडियोस तो नहीं होता है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है. और आई एम श्योर इतने सालों में हमने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को देखा है जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आगे बढ़ते जा रहे हैं. So I wish success to the entire team of Universal Idol, and may they keep roaring and scaling greater heights. Just 2 lines. ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए. नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको दर्शाए. ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
Thank you. Thank you. Suddenly feeling very formal about this. Seriously. Like that. I want to also introduce Ashish Bhai. Ashish Bhai is a very dear friend. Of course, I've known him for really long. But a master entrepreneur, of course, a giant in the real estate business. He's into hospitality, he's into finance, and now he's joined Universal Idol as their finance head. Right, Ashish Bhai? Director of Finance. One me on that one, but this is fantastic. I mean, talking to you and being introduced by you in itself is a big honor. Thank you so much, Ashish Bhai. And needless to say, thank you first of all, my fraternity and all the media family that I have out here for taking time out for this very important and joyous occasion in all our lives. Abhay, thank you so much. Balu, again, thank you. Imtiaz Bhai, thank you so much for this honor and considering me worthy of this platform. It truly means a lot. Universal Idol, my journey started with Universal Idol, I think about a year and a half ago. That's fine. I mean, as long as they're fine. आप लोग रह सकते हैं. नहीं But मुझे लगा मैं कम से कम आप लोग को थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे दूं तो कि कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई. तो शकील भाई जिनके हम इंतजार में हैं अभी फिलहाल अभी आए नहीं हैं अभी आते ही होंगे. शकील भाई और मेरी मुलाकात हुई दुबई में करीबन ऑलमोस्ट 1 सवा साल पहले. वहाँ पे मैं गया शकील भाई के लिए क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर मुकेश जी का सेंटनरी ईयर था. तो हम टूर कर रहे थे देश विदेश मुकेश जी को सेलिब्रेट करते हुए और मेरी मुलाकात वहाँ पे उनसे हुई जो और ये एक किस्म का एक जोन था एक आइडिया था जो शकील भाई के दिमाग में था कि नींद हम सुनते आ रहे हैं ऐसे रियलिटी शोज के बारे में जो टैलेंट बस अपने देश में कॉन्सेंट्रेट करता है. मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कभी मौका मिले तो मैं करना चाहूँगा एक ऐसे बड़े पैमाने पे जो शो सिर्फ अपने ही देश के लिए नहीं बल्कि सारे देशों के लिए सारे कंटेस्टेंट्स क्योंकि उनका मानना है और शायद ये आप सब जानते हैं कि एक स्लोगन दैट गोस बाय दैट म्यूजिक इज a universal language has no barriers and I think that's so true too when you understand what Universal Idol today means. Truly it's remarkable जिस किस्म से इन्होंने ऑडिशंस किए हैं कहाँ कहाँ नहीं ऑडिशंस किए 15 कंट्रीज में तो ऑडिशन कर चुके हैं ऑलरेडी और फिर इस पैमाने पे ये शो बांधना और नॉर्मली क्या होता है कि हम टीवी एक रियलिटी शो देख लेंगे और टीवी पे हम कंटेस्टेंट्स को ऑलरेडी एलिमिनेट करेंगे. यहाँ लाइव ऑडिशंस होते हैं करीबन 300-350 से ज्यादा ही आपके इनफैक्ट दिल्ली के ऑडिशन में मैं था 600 पार्टिसिपेंट्स थे. 600 पार्टिसिपेंट्स का बाकायदा ऑडिशन किया गया उनको एलिमिनेट किया प्रॉपर राउंड सिस्टम से. तो मैं बड़ा ही प्रभावित हुआ बहुत ही ज्यादा खुश हुआ ये सब देख के कि इस पैमाने पे ये लोग ये शो बांधते हैं. फिर ऑब्वियसली वहाँ पे तो मैं गेस्ट के रूप से गया और इम्तियाज और शकील भाई का प्यार देख के थोड़ा मैं भी लालची हो गया. मैंने शायद प्रस्ताव रख दिया होगा जो इन्होंने पकड़ लिया कि मैं काश उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका तो नेदरलैंड में ऐसा जरूर होता बट कहते हैं ना कि सही वक्त पे अगर कुछ सही मांगो तो शायद हो जाए. तो वही हुआ कि मैंने मांगा शायद ऊपर वाले से और अपने भाइयों से और इन्होंने ये सपना पूरा कर दिया. इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. और जी हाँ यूनिवर्सल आइडल की जर्नी शुरू तो हुई है. बहुत सारे सपने हैं बहुत सारे ऐसे उम्दा कलाकार हैं मैं कहूँगा देश में हमारे देश में विदेश हर जगह जिनको शायद कोई प्लेटफॉर्म मिलता नहीं. यानी आज अगर हम इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की अगर बात करें तो शायद आप जिसको फॉलो कर रहे हैं आप उसके हुनर को देखेंगे पर ऐसा बहुत सारा टैलेंट है हमारी कंट्री में. यानी एक बच्चा था व्हाट वाज हिज नेम इफ यू रिमेंबर एक तो समर्थ वाज आउटस्टैंडिंग. गांव खेड़े का लड़का था 11 साल का लड़का और क्या उसने यानी तबला बजाते हुए ही sang also and हाँ there was a blind young fellow but एक का नाम मेरे दिमाग में है ज़बान पे आ नहीं रहा. बहुत ही प्यारा नाम है के साथ था. इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे उसने मैसेज भी किया याद आता मैं एकदम से बताता हूँ कि इतनी कहानियाँ सुना रहा हूँ आपको शायद नाम से ऐसे निकलेगा बट इतने सारे लोग हैं और मैंने दिल्ली में तो खुद पर्सनली देखा इतने ऑडिशंस कर रहे हैं और क्या
क्या क्या टैलेंट था। यानी बच्चा 12 साल का, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस गुरु से इसने तालीम हासिल की है। तो जब ये टैलेंट है, ये मंच है, और खासतौर पे ऐसा मंच जहाँ आपकी उम्मीद जगह है, तो क्यों नहीं। आई थिंक पर्सनली ये बहुत बहुत ज़्यादा ही इनोवेटिव एक सोच थी, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्राइज मनी वाकई में सच है। No, that's reality. But jokes apart, I think all kudos to Imtiaz Bhai, to Shakil Bhai who is yet to come, and of course the entire team. Now we have Abhay, we have Ashish Bhai who joined the team, and looking forward to this. Thank you. तो आई थिंक आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यूनिवर्सल आइडियल क्या है, कौन है इनके पीछे, एंड व्हाई नील भाई इज जॉइंड यूनिवर्सल आइडियल एंड ब्रांड एम्बेसडर। वी गॉट द जिस्ट। वुड लाइक टू से टेक सम क्वेश्चंस, मतलब प्रेस से के अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है नील जी से या यूनिवर्सल आइडियल की कोई टीम से, तो प्लीज यू कैन आस्क। बैठेंगे तो शायद No, I think 15 countries have already been covered. 15 countries already cover हो चुके हैं, तो और हर कंट्री में ऑडिशन राउंड के बाद करीबन 10 से 20 के बीच में पार्टिसिपेंट्स आप चुन रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। 6 फाइनलिस्ट्स हो रहे हैं आपके ऑडिशन राउंड। आई रिमेंबर दैट कि 6 फाइनलिस्ट हर कंट्री से जाएंगे final round and season 1 में। How many countries are you covering? 20? 18 countries. Wow, that's quite a feat. जी, इनका बड़ा अच्छा सवाल है कि पहले तो इन्होंने तारीफ कर ली कि अकम्प्लिश्ड एक्टर हूँ, एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो यहाँ से मैं बस उठ के निकल जाऊँ, यह तारीफ करनी है, थैंक यू। बट नहीं, लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जज नहीं कर पाता, मैं इंसान हूँ। और मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, मेरी लेगेसी एक किस्म से बिलोंग करता हूँ मैं म्यूजिकल फैमिली को, जी हाँ। और बचपन से मैं अपने गुरुजी के साथ बैठकर रियाज करता हूँ। इनफैक्ट मेरे दादू के गुरुजी पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी मेरे भी गुरुजी रह चुके हैं। तो पियानो बजाता हूँ, म्यूजिक का बहुत शौक है, बट मैं उस हिसाब से अपने आप को ट्रेंड नहीं समझता, क्योंकि जैसे मेरे पिताजी हैं या मेरे दादा भी रह चुके हैं। बट मैं दिल की आवाज़ समझ लेता हूँ, सुरों का पक्का हूँ, नहीं कहूँगा कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ, तो थोड़ा मुझे नॉलेज है म्यूजिक के बारे में। तो बस मेरा क्राइटेरिया है 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इतने बड़े मंच पे अगर जा रहे हैं, तो पहला तो स्टेज प्रेजेंस, आपका स्टेज प्रेजेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आवाज़, आपका डिक्शन, आपकी आप जो गा रहे हैं बाकी दिल से गा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि टेक्निकल तो बहुत लोग गाते हैं, बट जो लफ्ज आपके मुंह से निकल रहे हैं, क्या उसकी मतलब क्या उसका मतलब आप समझ के गा रहे हैं या ऐसे ही गा रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है, मैं एक थोड़ा एनेक्डोट देता हूँ। मैं अपनी फिल्म कर रहा था जॉनी गद्दार श्रीराम राघवन जी के साथ, और बहुत अच्छे से फिल्म शूट हो गई। यानी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई मुझे फर्स्ट टेक लगे किसी एक शॉट में, कभी कभार एक शॉट में एक टेक में शॉट सही हो गया, तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार एक्टिंग बड़ी अच्छी कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेन किया हुआ हूँ। श्रीराम सर खुद हैं, बहुत सारे मेरे जो पूजा लखा सुखी जो मेरा सपोर्ट कर रही है और करते आ रही है, इसलिए शूट आसान था। पर जब मैं डबिंग पे पहुंचा, तब मुझे एहसास हुआ कि एक माइक के सामने वही चीज दोहराना, वही डायलॉग वापस बोलना कितना मुश्किल है। हम तो घर पे गाते हैं, मुकेश जी के गाने गाते हैं, किशोर दा का बहुत बड़ा फैन हूँ, किशोर दा के गाने में गाता हूँ। बट तब एहसास हुआ क्योंकि श्रीराम बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा कि भाई ये तेरे से कभी नहीं हो पाएगा, और उन्होंने कहा कि शायद तेरी आवाज मुझे डब करनी पड़ेगी किसी और से। और मैं डर गया, मैं कह रहा हूँ कि यार मैं मुकेश जी का पोता हूँ, मैं नितिन मुकेश का बेटा हूँ, अगर मेरी आवाज डब हो गई तो वो भी मेरी पहली फिल्म में करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म। तो मैं बहुत नाराज था,
और कहीं एक डिक्शन कोच वहाँ पे उस समय, उनके बारे में मेरे डबिंग आर्टिस्ट ने, डबिंग रिकॉर्डिस्ट ने मुझे उनका नंबर दिया, कहा कि जी तुम जाके एक बार उनसे मिल लो, शायद ये तुम्हारी मदद करें। तो मैं गया उनके स्टूडियो, उनका नाम था डॉक्टर वनमाली। डॉक्टर वनमाली एक नेशनल अवार्ड विनिंग स्पीच थेरेपिस्ट हुआ करते थे, अब हमारे बीच हैं नहीं, बट मैं उन्हें भगवान इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं एक ही लेसन के लिए गया उनके पास, और मैं जब गया तो उनके स्टूडियो बहुत छोटा सा एक 2x2 का एक स्टूडियो था, और मैं वहाँ पे बैठा हूँ तो मैंने अपनी कहानी सुनाई कि सर परेशानी हो रही है, मैं टब नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ मैं निकाल तो रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि मैं लिप सिंक करके अच्छे से टेक्निकली एक्सिक्यूट कर रहा हूँ, बट श्रीराम सर बड़े नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि जो तू कह रहा है उसका मतलब मैं दिल से नहीं कह रहा है। तो ऐसे सर ये दिल से नहीं कह रहा है तो मतलब मैं समझा नहीं। तो उन्होंने बस मुझसे मुझे एक माइक दिया और मुझे कहा कि ये कोई भी अपनी फिल्म का एक डायलॉग तुम उठाओ और डायलॉग बोलो, कोई भी एक लाइन थी फिल्म की, तो मैंने उनसे कही और उन्होंने कहा ये मुझे मुझे तुम्हें सुनना है, तुम्हारी आवाज में। बस एक इस लाइन से मैं समझ गया कि उनका मतलब क्या था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी हो खराब हो, उन्होंने मुझे कितने बड़े बड़े सितारों के उदाहरण दिए जिनकी आवाज इतनी अच्छी है नहीं, बट आज भी लोग उनके बारे में जानते हैं क्योंकि जिस किस्म से वो अपना प्रोजेक्शन करते हैं या जिस किस्म से अपना डायलॉग बोलते हैं तो लोग वाकई में कनेक्ट होते हैं। तो शायद वो जहन में मेरे रह गया था, और शायद इस बार जब मैं आया तो शायद यही मेरे दिल और दिमाग में था कि मुझे इनकी आवाज के साथ साथ इनके दिल की बात भी सुननी है। तो आई थिंक दैट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ जी। आपने तो गलत आदमी से ये सवाल पूछ लिया क्योंकि बहुतों के लिए ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है प्राइज मनी हो या कुछ हो। मैं मुकेश जी का पोता हूँ, मैं तो मुकेश जी का बेटा हूँ। मेरे लिए ग्रेटिफिकेशन सबसे ज्यादा है पहचान, और कोई कोई मुझे उसके लिए इज्जत दे मेरे काम के लिए, ऊपर वाले से बस यही शुक्राना करते रहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कम से कम इस लाइफ को बनाया कि कहीं पे भी जाऊँ तो लोग पहचानते तो हैं। तो पैसे कमाने के जरिए बहुत सारे होते हैं जिंदगी में, और ऑफ कोर्स मैं तो बीच में बैठा हूँ, पर महारथी मेरे सामने यहाँ पे सब अव्वल नंबर के बहुत बहुत टॉपदार प्लेयर्स हैं इस मार्केट में। रियल एस्टेट जायंट, रियल एस्टेट फाइनेंस जायंट, entrepreneurs, restaurateurs, etc. multiple businesses, और मैं एक कलाकार। तो हाँ, कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स महसूस करता हूँ जब उन लोग से बात करना होता है तो फिर इंटरफेयर करना पड़ेगा। बट ग्रेटिफिकेशन मेरे लिए सबसे ज्यादा यही है कि लोग इज्जत दें, लोग प्यार दें, आप लोग इतने तादाद के इतने नंबर में आज आए हैं, इतना खुश महसूस कर रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, उसके बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Gratification for this platform. ये मैं सवाल इसलिए फुली नहीं आपका जवाब दे रहा क्योंकि मैं सुनना चाह रहा हूँ प्रोड्यूसर्स से। आप So ये फर्स्ट सीजन की प्राइज मनी इज रफली अराउंड अप टू $1 million। सो ये हमने प्राइज मनी रखी हुई है फर्स्ट सीजन की अप टू $1 million। तो ये इसीलिए रखी है कि ये कोई, जैसे नील जी ने कहा कि ना किसी लोगों के लिए प्राइज मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए पहचान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पर जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ पे 11 साल के बच्चे थे, 12 साल के बच्चे थे जो बहुत छोटे छोटे गाँव से आए थे, तो उनके लिए शायद से पहचान पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्राइज मनी। तो हमने प्राइज मनी इसीलिए रखी हुई है कि शायद से इनसे तो कोई उनका फ्यूचर बन पाए। सो दैट्स अ ग्रेटिफिकेशन फॉर दिस सीजन 1। वेरी वेल सेड। पहचान इम्पोर्टेंट है और साथ साथ पैसे भी।
आज का इनफैक्ट मेरी पहली फिल्म और पहला गाना ही ये था कि पैसा थे एक तमाशा देख। तो आज भी वही देख रहा हूँ कि जिसकी इज्जत होती है, जिसके पास जिसका जिसकी जेबें गर्म होती है typically saying that. But सही कहा आपने कि बहुत छोटे छोटे गांवों से बहुत टैलेंटेड लोग, टैलेंटेड बच्चे हैं जो इस सपना देख के आ रहे हैं कि शायद उनकी जिंदगी सेट हो जाए। और शायद इस वजह से भी एक कारण था जो मैं जुड़ना चाह रहा था कि कम से कम अगर मैं जुड़ूं, मेरे जरिए कहीं तक तो पहुंचे, कहीं तक तो आवाज हम लोग शायद कर पाए। तो उसके लिए वापस बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी दादा। सॉरी दादा, आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, शो टेलीकास्ट कहाँ होगा? फारूक के नहीं देखा। फिलहाल तो मैं आपसे करूँगा, आप ही करेंगे, आप करेंगे सर? आप कर लें। हाँ जी। So at present ये YouTube पे live आएगा जब ये show बॉम्बे भी there are two auditions are going to happen in Mumbai and Hyderabad India में, दिल्ली already हो चुका है, Bombay and Hyderabad very soon in upcoming month है, and we are going to tie with lot of other channels, I mean on social media platform, So and also TV channels. right, I'll just take this up from here. So just to give you a little bit of an insight of what I think Imtiaz and of course in Shakil sir who are planning on this one, with of course with your permission on finance. ये शो टेलीकास्ट टिपिकली टेलीकास्ट वाला है नहीं, अभी हम शूट करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि ऑडिशंस इतने बड़े पैमाने पे होंगे तो हर कंट्री के ऑडिशंस की ग्लिम्सेस आप यूट्यूब चैनल्स पे देखेंगे जरूर। बट फाइनली इसका पूरा एक शो बनाने की हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सारे कंट्रीज का एक फॉर्मेटिंग करते हुए अच्छे से एक बड़े पैमाने पे शो करते हुए, कोई हमारे आज इतने सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म से होगी तो वहाँ पे शायद एक 8 एपिसोड या 10 एपिसोड करते हुए, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज हैं तो एक पूरी जर्नी बहुत है, बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे लोग हैं। और मैं तो चाहता हूँ, मैं तो वादा कर सकता हूँ कि लोग देखना चाहेंगे। तो मैं तो उम्मीद ही कर रहा हूँ कि शायद इस जर्नी में मैं भी हिस्सा हूँ। हाँ जी। Rightly said by you, so हम step by step इसको sure आगे लेके जाएंगे and हम चाहेंगे कि ये इसके एपिसोड हम आगे जाके रिलीज करें। हाँ जी हाँ। राइट नाउ तो हमारा यही टारगेट है कि सेमीफाइनल राउंड हमें करना है, तो ग्रैंड करने वाला है फर्स्ट राउंड। वी वांट टू टेक 120 कंटेस्टेंट ऑल ओवर जो जहाँ जहाँ ऑडिशंस की है। सो वी वांट टू टेक ऑल ऑफ देम टू दुबई फॉर सेमीफाइनल, टॉप 20 जो इसका राउंड का नाम है टॉप 20। That top 20 people we want to take them to some other Middle East countries of the final round here. So let's see, this is our planning. फिलहाल हमने जो भी ऑप्शंस किए 15 countries for ready, 3 countries to go. पहले हमें एक एपिसोड बनाना है ये टोटल ऑडिशंस का, then we want to take all this contest to दुबई, और दुबई के बाद हम फाइनल करेंगे जिसका बहुत जल्दी ऐलान हो जाएगा। तो just wait and watch. The whole planning is already told by Abhay sir. So finally, we are targeting Middle East, some country, and let's see, announcement will be very soon. Of course, it's in plan. फारूक जी, ये कंडीशन मैं दे चुका हूँ इससे, हालांकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है नहीं, बट मैंने इनसे दावा ले लिया है और भाई के रूप में इन्होंने मुझे वादा कर दिया है कि ये मेरे साथ एक म्यूजिक वीडियो जरूर बहुत जल्द करेंगे। कास्टिंग डायरेक्टर हमारे साथ बैठे हैं अभय जी। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक द आइडिया इज दैट, द आइडिया इज टू टेक द प्लेटफॉर्म, रेज द बार्स, get like-minded artists and all of us coming together and then starting it with that journey as just. Sorry, Ji. Thank you. Ji. So am I. We have a question from
Right. We have one question from the हाँ judge जी, over here. सॉरी जजेस के तौर पे सर जजेस कॉन्स्टेंटली हर कंट्री में अलग अलग जजेस वहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो कि वहाँ लोकल स्टार्स हैं लोकल बहुत बड़े उनका कलाकार खुद भी हैं जैसे जज जैसे एक दिल्ली के राउंड का जज मैं खुद भी रह चुका हूँ बट हर कंट्री में अलग अलग जजेस रहेंगे कोई एक ऐसा फाइनल जज एक जज है हाँ जी कोई ना ऑफ कोर्स अब वो सारे पत्ते आपके साथ सामने हमें खोल गए तो ये तो आज पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बहुत सारे ऐसे उनका कलाकार और नाम जुड़े हैं जो आगे आएंगे आपके तो एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान हुई है जो आपको 1 दिसंबर से लाइव दिखेगी बिकॉज 14 दिसंबर इज एन एपिसोड आई मीन इट्स ऑडिशन इन मुंबई वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑफ कोर्स मुंबई है हमारे सबके दिल के बहुत ही करीब है तो मैं चाह रहा हूँ कि मुंबई के जितने भी लोकल कलाकार हैं आर्टिस्ट हैं जो चाहते हैं कि देश विदेश में अपना नाम बढ़ाएं मुंबई 14 दिसंबर इज मुंबई ऑडिशंस and I think I'm hoping everyone comes in big numbers. जी कहाँ पर होगा? We'll be announcing all the platforms and all the places within a week. No age criteria है सर कोई age criteria नहीं The Universal Idol. Of course, हम talents ढूंढ रहे हैं across the globe. There are different talents. कोई बहुत अच्छा singer है. We have found a very good opera singer. So multiple talents मिले हमें. So we are exploring talents and we are planning an album with the talents. एक first album बनाएंगे called Universal Idol. और आई फील सर कि आपके सवाल का अगर जवाब वाकई में देना है तो देखिए कंपटीशन एक बड़ा सख्त शब्द हो जाता है कि हम कम्पीट कर रहे हैं बट जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि म्यूजिक हैज नो बैरियर हम हमारी म्यूजिक अगर हम देखें तो सही मायने में जुगलबंदी हम जिस बारे में बात करते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना किसी देश का कोई टैलेंट आके यहाँ पे अगर आता है जैसे अगर आज हमारे पास इतने अच्छे स्टार हैं कलाकार हैं और आते रहते हैं यहाँ पे इतने बड़े बड़े पैमाने पे शो होते हैं हाल ही में इतने बड़े स्टार्स आके जम जा चुके हैं तो क्यों ना ये एक ऐसा मंच मिले कि जहाँ हर टैलेंट अपने साथ में मिले क्या पता कल तो जाके कुछ एक नया जुगलबंदी जैसा बन पाए कुछ एक नई चीज निकल पाए म्यूजिक के रूप में आजकल रियलिटी शो को लेकर काफी आलोचना होती है बाइक हो जाते हैं तो आपके रियलिटी शो में तो कैसा रहेगा अगर बायसनेस होता सर तो मैं पहला पार्टिसिपेंट खुद होता और मैं भी वो प्राइज लेने के लिए भागता ऑलमोस्ट $1 मिलियन आज ऐलान कर लिया प्रोड्यूसर साहब ने कि मैं ऐलान नहीं कर रहा प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं तो ये सुन के तो मैं खुद सोच रहा हूँ कि अब तक मैंने ऑडिशन क्यों नहीं किया इसमें ये बायस नहीं होने का और एक रीजन है कि ये हम चाहते हैं कि जितने हो सके उतने छोटे गांव में ये फेमस और इंडिया में कर रहे तो इंडिया में दिल्ली हो चुका आगे बॉम्बे है हैदराबाद है और भी सिटीज में जाएंगे तो बायस अगर होना होता तो शायद से कोई स्टारकास्ट को लेकर उसे आइडिया शुरू करते हैं बट वी हैव गॉन टू डीपेस्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस इंडस्ट्री और मालूम पड़ रहा था पहले कि नहीं विनर है सर अभी अभय सर ने कहा कि दुबई में सेमीफाइनल्स होंगे और मिडिल ईस्ट की किसी एक कंट्री में डेफिनेटली फाइनल्स होंगे सर टैलेंट तो जैसे म्यूजिकल शो है तो जाहिर सी बात है सिर्फ म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंटेशन की तालीम में जिसमें जो तालीम हासिल की है उस पर जजिंग उसी पॉइंट पे है यहाँ पे हम नहीं प्रमोट कर रहे हैं ऐसा यानी अगर आपको डांस करते हुए गाना गाना बेशक आप प्लीज गाइए पर है तो सिर्फ म्यूजिकल शो सर आप पैसे लगाएंगे हम लॉन्च करेंगे और उसमें मैं भी एक्टर करूंगा और वो हीरो बन सकता है मैं विलेन का रूप करूंगा प्रॉमिस
Sorry? मुर्गी के स्मॉल लैंग्वेज ये इंडिया का शो नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये रीजनल ये वर्ल्ड लेवल, ये वर्ल्ड है यहाँ पे हम कंट्रीज कवर करने वाले हैं। तो 18 और सीजन में 18 कंट्रीज, 18 कंट्रीज में जो भी विनर होगा तो उसमें रीजनल और ये फिलहाल तो इसमें नहीं है। क्योंकि हम जितनी कंट्रीज में आएंगे हर कंट्री की अपनी भाषा होती है, अपनी लैंग्वेज होती है, उनका एक सिंगिंग का अलग तरीका होता है। सो हम ये कवर इसीलिए उसको नाम दिया गया यूनिवर्सल आइडियल कि हर कंट्री का एक पहचान, हर कंट्री की भाषा, एक लैंग्वेज को आगे हम कैरी करेंगे और उसमें जज करके एक सेमीफाइनल होगा, बाद में फिनाले एपिसोड बनेगा। बस फारूक, थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे आदत है पीछे भागने की। आगे मत जा। आप लोग कर लो। बिल्डिंग वाले यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे मल्टीपल कल्चर्स कमिंग टुगेदर। हम जब इंडिया में रहकर रियलिटी शोज देखते हैं, टैलेंट से ज़्यादा उनकी बैक स्टोरी सुनते हैं, जो ड्रामा आसपास होता है वो देखते हैं। So I guess it's a good initiative, multiple cultures, 18 countries, हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज, अपनी कला, अपना औता, सब आप एक साथ देखेंगे और आप देखेंगे कैसे कहाँ से टैलेंट आके एक साथ कम्पीट करता है। एक लैंग्वेज में एक ही कंट्री में टैलेंट चूज करना थोड़ा मुझे लगता है आसान है। जब मल्टीपल कंट्रीज आती हैं, it just becomes more interesting. Thank you, Mahir. Thank you so much. Thank you so much. It's amazing to have Radha Universal as a singer and who's also a doctor. What do you have to say about Universal Idol? I am really happy to be here. I think music is the universal language of love. It connects people all over the world. So I think this is a beautiful initiative. And I'm so proud to be here and be a part of it and support it. And बहुत सारा talent और बहुत सारे लोग और ये सब music मिलाता है सबको. So I'm excited. You are being a singer. We would love to hear a line from you. Line from you. Okay. I'll just sing a Punjabi line.
गलियां गुजारा किवे रातां कालियां रंगदियां मैनू रुत्तां प्यार वालियां तेरे बाजो जी नी लगदा मैं तो मर गया आजा सोनिया घर आजा सोनिया आजा सोनिया Thank you. Thank you, Viva. Looking forward for more. Manuel Korean mix song. अच्छा मेरे साथ ये जागी जागी रात पुकारे तुझे सुना दे वही तू Jimmy आजा we together Jimmy आजा आजा one more oh okay Where will I? एक सॉन्ग आपको चाहिए मैं क्या गाऊं ये गाने इनके सामने मैं कहाँ ना बताऊं अभी किसी ने हाल ही में पूछा अपने गाड़ी में कौन सा गाना सुनते रहते हैं हालांकि हूँ मुकेश जी का पोता किशोर का बहुत बड़ा फैन हूँ बट एक ही उनका गीत है जो मेरे दिल के बड़ी करीब है और वो गाना मैं गाते रहता हूँ आज कोशिश करता हूँ एक लाइन कुछ और गाना गा लेता हूँ बट किशोर का मेरे दिल में है मुकेश जी दिल में दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू थैंक यू Chef, can we have you here, please? Say a few words. Chef Chachape, can we have you say a few words? Universal Idol एक global platform है, हमने इसको promote करा है. Such wonderful work, 14 countries में auditions already हो गए हैं. आप क्या कहना चाहेंगे Universal Idol के लिए? मुझे लगता है ऐसा प्लेटफॉर्म में लोग बहुत इंतजार करते हैं और अभय हमारे भाई है और उनके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लोगों के लिए तैयार हो रहा है जिसकी सच्ची में जरूरत होती है छोटे शहर हो बड़े शहर हो आर्टिस्ट बहुत है और ऐसे प्लेटफॉर्म का लोग इंतजार करते हैं तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं Thank you, Shiv. Thank you. So much. Thank you. Vishal, can we have you here, please? Vishal, we wanted to have him on board, for this. आप क्या कहेंगे प्लेटफॉर्म के बारे में? मेरा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमने बहुत सारे सिंगिंग रियलिटी शो देखे हैं इतने सालों से और सिंगिंग रियलिटी शो से बहुत सारे कलाकार हमारी इंडस्ट्री को मिले हैं तो अभी यूनिवर्सल आइडल जो है वो पूरे दुनिया में लोगों को ढूंढ रहा है सिंगर्स को ढूंढ रहा है तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सारी दुनिया के लोगों के लिए टू कम इनटू द लाइमलाइट एंड शोकेस देयर वर्क्स Thank you, Vishal. Thank you so much. थैंक यू सो मच बोल बाबा फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव और मैं सारी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगा एंड आई थिंक इस प्लेटफॉर्म की इतनी ज़रूरत है बिकॉज नाउ डेज जो यंग टैलेंट होता है उन्हें बस मौका चाहिए होता है एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है अपना टैलेंट दिखाने का एंड आई थिंक दिस इज गोइंग यूनिवर्सल सो सो मेनी कंट्रीज so many people are going to be participating young talent is going to be participating so I think it's a great platform और यहाँ से हमें fresh talent मिलता है we see so many young talented people who via this platform get an opportunity to come in the limelight कि हम तक वो पहुँच सके आम आदमी तक वो पहुँच सके so I think this is a great initiative and I think we'll have a lot of good young talent coming our way and we could find a lot of great talent with them. So big up to the entire team, big up to Abhay and team. Wishing Universal Idol all the very best and looking forward for the best of talent coming ahead and we could give them all the love. Thank you. टैलेंट इतने छुपे हुए हैं इंडिया में इसमें है स्मॉल स्मॉल सिटीज में हम लोग जाते हैं टैलेंट हंट करने के लिए एंड देयर आर सो मेनी गुड सिंगर्स दे वांट वन प्लेटफॉर्म एंड दिस इज द आइडियल वन आई थिंक सो फॉर देम एंड आई लुक फॉरवर्ड टू गेट
very good talented and a singer, good singers, which Indian country require. And all the best to the user guide. Thank you. गाना सिंगिंग के बारे में जो जबकि मेरी आवाज़ तो बिल्कुल सिंगिंग की जैसी नहीं है, बट हाँ इस टीम के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी कि उन्होंने जो एक बड़ा टैलेंट का अवार्ड खोला है शोज, तो बहुत सारे न्यू लोगों को चांस मिलेगा। एंड जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे कि एक मौका मिले, एक मौका मिले, इसके बहाने उन्हें बहुत सारा मौका मिला एंड उन सबके लिए मेरी तरफ से गुड विशेस। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू यूनिवर्स आइडल। जैसे कि आप बताया कि 18 कंट्रीज से नए नए टैलेंट आ रहे हैं और म्यूजिक तो भी इंडियंस को म्यूजिक पहले से हमेशा से पसंद है। सो आई जस्ट विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशन टू यूनिवर्स आइडल। थैंक यू सो मच। सच अ ब्यूटीफुल वंडरफुल प्लेटफॉर्म एक्चुअली। मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे आगे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे जिसकी वजह से हमें इतने सारे अच्छे सिंगर्स मिले, नॉट इंडस्ट्री को, लेकिन हम जब भी कोई गाना प्ले करके सुनना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं ये गाना ये सिंगर, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और यूनिवर्सल आइडल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, तो और भी हमें अच्छे अच्छे सिंगर्स मिलने वाले हैं। एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल टीम। वैसे मैंने गुजराती एक्ट्रेस तो मैंने खुद भी गुजराती गाना गाया है, तो आई नो मतलब गाने का क्या प्रभाव होता है, मतलब हमें हर मूड, हमारा अगर मूड कुछ भी चेंज करना हो तो गाना हमें कितना हेल्प करता है। एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन दिस यूनिवर्सल आइडल प्लेटफॉर्म, बहुत ही आगे बढ़े और अच्छे अच्छे सिंगर्स फ्यूचर्स में हमें मिले। Thank you so much. Very good, Divyang. Please come and say a few words. Everyone, I think it is great that Universal Idol is promoting musicians. I'm a big promoter for music. I mean, I handle music and quality for almost 20 years. I still do A&R for them. And I think इतना talent है इंडिया में और म्यूजिक और डांस में स्पेशली, और इतने कम प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एग्जिबिट करने का मौका मिलता है। सो आई कांग्रेचुलेट द टीम एंड आई थिंक वी सी सम अमेजिंग टैलेंट बिकॉज आई एम अमेज्ड विद सोशल मीडिया बूमिंग विद सो मच टैलेंट, और जब एक रियल प्लेटफॉर्म मिलता है तो आई थिंक इट्स बोनस है। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको जब यूनिवर्सल आइडल जैसा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है और यंग टैलेंट को एक मौका दिया जाता है? आई थिंक बहुत अच्छा है। हमारे ज़माने में ये सब नहीं होता था, नहीं तो अभी मैं भी माइक के साथ होती और यहाँ मुखिया की नहीं होती। So I'm so happy कि अब youngsters को बहुत सारे platforms मिल रहे हैं। Youngsters क्या है, all age, everybody is getting a platform and it's very good. Universal Idol खुद में ही बोल रहा है that it's universal. And Neil is the brand ambassador, so Neil से मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। And brand ambassador ऐसा होगा तो definitely उसके results भी बहुत अच्छे होने वाला है। I think Neil के साथ आपका एक special bond रहा है because आपने उसके साथ एक picture भी बनाई है। हमारा मिलना उनसे रह गया, but any message you want to give to Neil? Neil वही है right side में, but Neil का मैं यही बोल सकती हूँ कि Neil जैसा इंसान मैंने कोई देखा ही नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। Neil is like amazing, amazing. Neil, I'm just praising you. No, that's a fact. जब सारी दुनिया आपका हाथ छोड़ देगी, Neil आपका हाथ पकड़ा हुआ आपको खड़ा मिलेगा। That's it. Let's get a warm round of applause for Neil for being here and we're so happy to have him here. तालियां तो बजा दो थोड़ा कैमरा को के Neil के लिए। Come on. नेहा जी, आप आना चाहेंगे? थोड़ा बहुत गाती है, मैंने सुना है आपको हमारे साथ कभी-कभी कैरियोके वर्जन गाते हुए। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे और प्लेटफॉर्म बनाए जाए? यूनिवर्सल ने जो करा है वो बहुत ही अच्छा है। कुछ शब्द जो आप पार्टिसिपेंट्स को देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आज फर्स्ट टाइम मैं सर को मिली हूँ। सर नील सर, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे फर्स्ट टाइम मिलके, और सच में आप बहुत हैंडसम हैं, सीरियसली, है ना? अभी तक तो फिल्म ही देखा था मैंने तो, और ये जिस तरीके का इनिशिएटिव उठाया गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जिनके अंदर टैलेंट होता है उनको प्लेटफॉर्म की तलाश होती है एक्चुअली। जब उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उनके सामने एक रास्ता बन जाता है कि एक सक्सेस का रास्ता, अपना टैलेंट दिखाने का रास्ता। और मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है, मेरी आवाज़ एक्चुअली ऐसी है नहीं, थोड़ी सी अच्छी है, बट आज थोड़ी सी बेसुरी लग रही होगी क्योंकि गला बैठा हुआ है ना।
और क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट इसका हिस्सा होकर। बाकी सिंगिंग तो मुझे नहीं आती, आपकी तो मैं भी गाना वाना गाती, बट जो है अपने सर हैं नील नीतीश जी, आपके फादर का, पापा का एक गाना है जैसी करनी वैसी भरनी। तो अक्सर अक्सर मैं जब भी सेवा करती हूँ, सोशल वर्क करती हूँ, तो मैं हमेशा वही गाना चूज करती हूँ, तेरा किया आगे आएगा, सब कुछ है क्या जी। बहुत ही अच्छा है। मैं चाहूंगी कि आप प्लीज मेरे साथ आके ये 2 लाइन बोले। ये वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग है जो मैं हमेशा सबसे फेवरेट गाना बता नहीं पा रही है, चलिए आइए। स्टार्टिंग किया मुझे पता है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सब कुछ है क्या पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये गाना तो यकीन होता है कि कर्म जैसा करोगे वैसा ही लौट कर आएगा। ये गाना मैं जब भी सुनती हूँ और मुझे तो लगता है ये गाना एक ऐसा सॉन्ग है जिससे इंसान को अकल भी आती है, तो थोड़े से भटक जाते हैं इधर उधर, कर्मों को मानते नहीं है, डेस्टिनी को। मेरा तो सिर्फ एक ही मानना है, बहुत यहाँ पे शायद जानते नहीं है, पर मैं सिर्फ कर्म पे विश्वास करता हूँ और कुछ नहीं। आपके कर्म अच्छे हैं, आप इंसान किस तरीके से आप इंसान के साथ आपका व्यवहार कैसा है, उसमें बहुत बहुत चीज़ें आपके बारे में समझ में आती है, और कर्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। तो जी हाँ, ये गाना उस शब्द को और कर्म को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाना है। क्या बात है, काश मैं मम्मी अपनी मम्मी को कह पाती, मम्मी देखो ये गाना तुम सुनती हो, मैं आज उन्हीं के साथ रही हूँ और साथ में गाना भी गा रही हूँ। छोटे से बचपन से आके आज यहाँ पर सब कुछ मेहनत करते करते यहाँ तक आए, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और आपके साथ Not at all. The pleasure is all mine, and you worked very hard for this talk. थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू अंकल, आप सबने सुना, पसंद किया। So just यही कहूँगी कि this is a great initiative by the Universal Idol, and I would thank everyone for joining us and appreciating everyone on this platform, especially me sir for being the face of that platform. And just best of luck everyone, and thank you so much.
I'm really glad to be a part of this Universal Idol. And thank you so much, all of your presence. Thank you, thank you. I'm glad that I'm here. And thank you so much for calling us. And it's so beautiful to be here. I'm super excited for this. And as I'm seeing, it's a dog. So I'm so happy for this. And all of us guys. Because the language of universe, the music is universal. So congratulations to the people who have been able to put this whole thing together. Wish you all the best and looking forward to a fantastic journey. Thank you.